ॐ अङ्गे तु वामे वृषभानुजामुदा विराजमानामनरूपसौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशेषकल्याणगुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं सनकादिकसमारम्भां श्रीनिम्मार्काचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा गोलोक बिहारी के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय धर्म रत्न सद्गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पधारे हुए आप सभी विद्युतजन, संतजन, महंतजन, भक्तजन एवं श्रद्धामयी माताएं, सर्वप्रथम कुछ बोलने से पूर्व सद्गुरुदेव भगवान का यह आदेश हुआ कि पहले कुछ आंग्लिक भाषा में, इंग्लिश में कुछ श्रवण कराया जाए, उसके बाद ही आगे का कुछ वर्णन किया जाए, क्योंकि आज की जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमारे सनातन धर्म के पद से च्युत होती चली जा रही है। तो उनको वापस सनातन धर्म के मार्ग में लाने के लिए सर्वप्रथम कुछ आंग्लिक भाषा में जो वेदांत 10 श्लोकी है उसके 1-2 श्लोकों का अर्थ आप श्रवण करें। नान्यः गति कृष्ण पदारविंदात् संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात् भक्तेक्षयोपात सुचिन्त्य विग्रहात् अचिन्त्य शक्तेरविचिन्त्य शासयात्। अविचिन्तय शासयात् अचिन्त्य शक्ते ब्रह्म शिवादि न संदृश्यते तथापि भक्तेक्षयोगात् सुचिन्त्य विग्रहात् ब्रह्म शिवादि वंदितात् कृष्ण पदार विंदात् बिना अन्य गति न अस्ति। It means that the Supreme Lord, who is beyond all the thoughts and is not even manifest before the great souls like Brahma and Shiv, yet relents to assume several forms to enrapture the loving hearts of the devotee with divine love, beauty and grace. So let us all take refuge in the lotus feet of the Lord Sri Krishna, who is the most beloved of the deities like Shiv and Brahma. The loving servitude and devotion alone are the path to invite Lord Sri Krishna's grace and his compassion. कृपास्य दैन्यादि युधि प्रजायते यथा भवेत् प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिर्हनन्याधिपतिर्महात्मना सचोत्तमः साधन रूपिका परा. In this shlok, Bhagavan Shri Nimmarkacharya ji describes, reveals the nature of the loving devotion of the highest order. A devotee out to relinquish his ego and surrendered himself into the lotus feet of the Lord Sri Krishna, the supreme Lord of this entire creation, entire universe, without any reservation. A devotion accompanied with the intense love and care alone can make the master of the omniscient, omnipotent, unknowable and the most unmanifest. But the Lord makes it manifest before the eyes of a devotee. So thus this is known as the Uttama or the noble devotion, and all the other forms of upasanas are known as the instrumental form of devotion. So we should all try to do sadhana, upasana and bhakti of Lord Sri Krishna and Sri Radharani and try to spiritually uplift ourselves. Basically, there are 4 essential factors in the path of spiritual upliftment, which are upasya rupam tadupasakasya cha kripa phalam bhakti rasastatah param virodhino rupamathai tadapter geya imertha api pancha sadhubi. First one
is the knowledge of the nature of the Lord. Second is the knowledge of the nature of the individual self. Third is the knowledge of the grace, the nature of the individual self. Third is the knowledge of the grace and its working in a life of an individual self. Fourth, the nectar of the devotional love. These are the essential factor in a spiritual upliftment. So the knowledge of these four essential factors, truth, these essential four truth liberates a sadhak and makes him experience the love and the divine grace of Sri eternal couple, that is Sri Radha and Sri Krishna. So ये तो अभी आपने थोड़ा आंग्लिक भाषा में श्रवण किया, परंतु हिंदी भाषा में अपनी जो मातृभाषा है उसमें भी थोड़ा समझने का देखिए प्रयास करें। जो आज का प्रत्येक जीव है वो आनंद की तलाश में इधर से उधर भाग रहा है, परंतु आनंद उसे मिल नहीं रहा है। तो ये आनंद क्या है जो भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने द्वैताद्वैत मत दिया है, उस द्वैताद्वैत मत के अंतर्गत जो आनंद तत्व है उसको समझने का प्रयास करें। 2 मिनट और लूँगा, इसके ज़्यादा नहीं। देखिए, भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी के अनुसार आनंद जो है वो ब्रह्म का ही पर्याय है, जो कि श्रुति के द्वारा रसो वही सह के रूप में प्रतिपादित किया गया है। उन्होंने अपने भाष्य में रस तत्व, परमात्म तत्व की अखंड आनंदमयता का स्पष्ट घोषणा करी है। उनकी मान्यता के अनुसार ये जो आनंद है, ये आनंदमयता है, इसका जो संबंध है वो जीव से नहीं अपितु ब्रह्म से है। आनंदमय परमात्मा न तो जीवा कुत, जो जीव है वो तो केवल उस ब्रह्म की अनुभूति से ही आनंदित होता है। तो इससे क्या हुआ कि जो आनंदमय ब्रह्म है और आनंदित होने वाला जीव है उसमें भेद स्पष्ट हो गया। अतः हम जीव को आनंद में नहीं कह सकते। रसम येवानम लब्ध्वानंदी भवति इति वाक्येन लब्ध लब्ध वयोर भेद व्यपदेशात जीवो नानंदमयः, जीवो ना आनंदमयः। देखिए, इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि आनंद और रस ये ब्रह्म की स्वरूपात्मक धर्म है, परंतु फिर भी यह चित्त और ज्ञान के द्वारा आस्वादनीय है। चित्त तत्व जो है वो ब्रह्म में विभु रूप से और जीवों में अणु रूप से पाया जाता है। आनंद तत्व को अव्यक्त तथा व्यक्त 2 रूपों में स्वीकार किया गया है। तो आनंद तत्व के व्यक्त रूप का प्रतिपादन तो इस नाना रूपी जगत से हो जाता है, और श्रुतियों में वाक्य भी आया है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात् अथवा आनंदे जातानि जीवंती इति वाक्यों से समर्थन होता है इस बात का। और निम्मा और परंतु जो आनंद तत्व की अव्यक्ता अवस्था है वह अक्षर ब्रह्म की द्योतक है, उसमें वह निर्विशेष और चिदान रहता है। और देखिए, ईश्वर का आनंदानुभव उसी की दिव्य चित्त शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त आनंदात्मक विश्व का स्पष्ट शरीर रहता है। तब तक वह इस भगवत रचित शरीर की जागृत अवस्था की भांति सभी रसों का, लीलाओं के रसों का आनंद लेता रहता है, क्योंकि उसके संकल्प में भी भगवत अनुग्रह तो अवश्य रहता ही है रचे हुए शरीर में। तो इसी से वह लीला रस के लिए रचे हुए संसार की अनुभूति कर पाता है। और इसी आनंद के लिए भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने ब्रह्म को लीला रस कहकर के भी बुलाया है, निर्देशित किया है। स्वस्पष्ट शरीर आदि भावोपि मुक्तस्य भगवल लीला रसः भोगोपपत्ते कदाचित भगवल लीलानुसारेण स्वम संकल्पेनापि सृजति। तो जो चिदात्मक आनंद है वो बद्ध जीवों के लिए दुर्लभ है, परंतु जो मुक्त जीव हैं केवल वो ही इसका आनंद ले पाते हैं। और इसी से यह सिद्ध होता है कि जो जीव का आनंदानुभव है उसमें ये जो आनंद तत्व है यह इसका संबंध जो है वो विषय से नहीं, विषय से नहीं, विषय से है। तो आनंद में परमात्मा की कृपा से जब भक्त के, साधक के अंतःकरण में, हृदय में उस रस का या आनंद का उदय होता है, तब वह उस दिव्य स्वरूपात्मक, उसकी पराशक्ति युक्त और रसस्वरूप आनंद का अनुभव कर पाता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अंतिम बात ये कह करके कि ये जो वास्तविक में ब्रह्म रस है इसका अनुभव करना ही भगवत लीला रस है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण और उनकी परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी ही इस भगवत लीला रस या माधुर रस के प्रमुख मुख्य केंद्र बने हुए हैं। और इसीलिए प्रत्येक प्राणी को यदि आनंद की
इच्छा है, आनंद चाहिए, तो वो केवल राधा गोलोक बिहारी भगवान के चरणों में ही जीव को प्राप्त हो सकता है। और यही इसीलिए सबका, प्रत्येक प्राणी का यही कर्तव्य है कि वो भगवान की भक्ति करे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कोई गलती हुई हो तो अपना बालक समझ के क्षमा करें।